गुड मॉर्निंग सभी को। Morning. Something which was in my heart, I just want to share about the love of God. और आज सुबह जो मेरे मन में है वो मैं आपके साथ Can you hear बांटना, me? और वो है परमेश्वर का प्रेम के संबंध में। Yeah. So many times we observe that after a person receives Christ, he does not have a good foundation in his life. और हम ये अपने जीवन में कई बार पाते हैं कि कभी जो मनुष्य हो यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाने के बाद उसके जीवन में एक सही नींव नहीं होती है। Many times the reason is because he did not receive the foundation of love of God in his heart. और कई बार उसके हृदय के अंदर जो परमेश्वर के प्रेम उसकी नींव उसके हृदय में नहीं होती है। Yeah. So one example which I can give you is of a baby who is born. और एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि बच्चा जब एक जन्म लेता है, We know that a baby when it's born, it doesn't immediately start walking. और हम ये जानते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत वो जन्म होते ही चलने नहीं लगता है। Initially, it just can just lie down on the bed. और वो जो बिस्तर जो होता है उसके ऊपर ऐसे लेटा हुआ रहता है। After some time, it can just turn to one side. फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो एक करवट बदलता है और एक बाजू पर वो मुड़ता है। After some time, it can go in the upside down direction. It can fall on its stomach. और कई बार हो सकता है वो ऊपर नीचे होकर पेट के बल वो हो सकता है। And then it can slowly start putting its hand up and start crawling. और थोड़े समय के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो थोड़े थोड़े से आगे घसीट के जैसे चलने का प्रयास करता है। All this while, what the baby receives is just the love of the mother and the father. और इस समय के दौरान जो है वो बच्चा जो है उसके माता और पिता का प्रेम जो है उसको वो अनुभव करता है। And because he receives so much of love all this while, it develops a deep sense of security in his heart. और ये माता पिता के प्रेम के कारण उसके हृदय के अंदर एक बहुत ही गहरी सुरक्षा का भाव उसके मन में, उस बच्चे के मन में आता है। That's what helps him to go forward in his life, and he never forgets the love of his father and mother in his whole life. और उसके पूरे जीवन काल के अंदर वो बच्चा जो अपने माता पिता का प्रेम जो है कभी भी नहीं भूलता है। So that is something which all babies receive when they are small, and they don't have to do anything for that. और ये जब वो छोटे होते इसके लिए उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। This is how God has created man. और इसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। So it is very important for us as we are born again to meditate on how much God loves us. और ये बहुत ही जरूरी होता है इस चीज के ऊपर मनन करना कि कितना अधिक परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। More we meditate on the love of God, more our love grows for Him. Can you repeat, brother? More we meditate on the love of God, more we can grow in the love of God. और जितना अधिक हम प्रभु के प्रेम को जानेंगे उतना अधिक उसके प्रेम में बढ़ पाएंगे। For example, Jesus said in Luke 7. और जैसे हम लूक 7 के अंदर देखते हैं, we see that Jesus is in the house of Simon the Pharisee. और यहाँ पर यीशु मसीह समौन जो फरीसी उसके घर पर वो था। And a sinful woman comes to his house. और एक पापी स्त्री उसके वहां पर वो आती, उसके घर पर आती है। And we see what the woman does in verse 44. उसके 44 वचन में वो पापी स्त्री जो करती है वो हम देखते हैं। Verse 38. It says, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and kept wiping them with the hair of her head, and kissing his feet, and anointing them with the perfume. और वहां पे लिखा है कि उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को
आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगे और उसके पांव पर बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। 38 वचन। And this is something which the woman was doing as an expression of her deep love and gratitude for Jesus. और ये एक स्त्री जो है अपना जो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और एक बहुत ही गहरा प्रेम है उसके प्रति वो ये कुछ यहाँ पर कर रही थी। So if I have a deep gratitude and a love for Jesus, I will also have that sense of that love, and I will also pour out my heart before Jesus in the और same यदि way. स्त्री के समान ही अगर मेरे अंदर धन्यवादी या प्रेम परमेश्वर से प्रेम करने वाला मन तो उसी के समान उसके सामने पूरी तरह से अपने हृदय को मैं उंडेलूंगा। Jesus said in verse 47 that she has been forgiven much, that's why she could love much. और यीशु मसीह ने कहा कि उसके अधिक पाप माफ हुए हैं इसलिए वो अधिक मुझसे प्रेम करती है। In other words, as much as I remember what type of what pit God has taken me from and how much God has forgiven me, if I remember it every day, I can love Jesus more. और यदि मैं इस चीज को स्मरण करता हूँ कि कितने अधिक उस गहरे खड्डे से परमेश्वर ने मुझे निकाला, कितना अधिक उसने प्रेम मुझसे किया, तब मैं उसमें बढ़ूंगा। We read in 2 Peter 1:9 और दूसरा पत्र 1:9 में लिखा है that we should never forget the purification from our former sins. और वहां लिखा है कि अपने पहला पत्रस 2 Peter 1:9, sorry. दूसरा पत्रस 1:9, माफ करना है, दूसरा पत्रस उसका 1:9 वहां पे लिखा है क्योंकि अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। We should never be a person who has forgotten that God has forgiven so many sins I have done. और कभी हमें ये भूलना नहीं है कि हमने जो कितने अधिक पाप किए वो सारे परमेश्वर ने माफ किए हैं, इस बात को। That is one thing which will increase our love for Jesus. और ये एक ऐसी बात होगी जो हमारा प्रेम परमेश्वर यीशु के प्रति और भी अधिक बढ़ाएगा। You can maintain that tender heart like that woman who had a gratitude towards what Jesus has done. और उस स्त्री के समान एक कोमल हृदय हमारे अंदर उत्पन्न करेगा एक धन्यवाद के साथ परमेश्वर के प्रति। And second thing which God has done for us as He has justified us. और दूसरी चीज जो परमेश्वर ने हमारे लिए की, उसने हमें धर्मी ठहराया है। So this is something more than forgiveness. और ये कुछ माफी पाना या क्षमा प्राप्त करना उससे अधिक बढ़कर है। Forgiveness is that I am a sinner and God has blotted out my past. और पापों की माफी मतलब मैं पापी हूं और परमेश्वर ने मेरे पापों को पूरी तरह से माफ कर उससे पूरी तरह से मिटा दिया है। And I don't have any guilt when I stand before God. और जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं तो कोई भी दोष की भावना मेरे अंदर नहीं होती है। But justification is that whatever righteous thing Christ has done, that has been accounted or credited to my account. और यहाँ पे धर्मी ठहराना इसका मतलब यह है कि जो भी भली और अच्छी धार्मिक चीजें यीशु मसीह ने की है वो मेरे जीवन के ऊपर लाद दी जाती है या मुझ पर दे दी जाती है। That means I who have lived a life of sin and never pleased God, when I come to God in faith and I receive Jesus in my life as a free gift, God justifies me. That means He looks at me as though as I am His own beloved son. और इसका मतलब कि मैं एक समय पे जो पापी था, यीशु मसीह के पास पापों की माफी पाने के बाद यीशु मसीह मुझे जो है मुझे अपना कर परमेश्वर मुझे वो धर्मी ठहराता है और अपना बनाता है। He looks at me as though I am Jesus Christ. और परमेश्वर मुझे इस तरह से देखता है कि जैसे यीशु मसीह की तरह। That means when I stand before God, He looks at me as though I have never sinned in my own life. और जैसे मैं उसके सामने खड़े रहता हूँ वो मुझे इस प्रकार देखता है जैसे मैंने अपने जीवन भर कोई पाप नहीं किया है। He can call me beloved son like He called Jesus his beloved son. और जैसे वो यीशु मसीह को अपना प्रिय पुत्र कहता है उसी प्रकार वो मुझको अपना प्रिय पुत्र कह के पुकारता है। This is one truth which we need to experience by faith. और ये एक अच्छी बात या भली बात हमें विश्वास से हमारे जीवन में अनुभव करने की जरूरत है। In Romans 4:5 says that He justifies the ungodly. और रोमियो 5:4 में इस प्रकार लिखा है
कि वो जो भक्ति मनुष्य उसको वो धर्मी ठहराता है। That means if I come before God as a righteous person, I will not receive the justification. और यदि मैं परमेश्वर के सामने एक धर्मी बनकर परमेश्वर के सामने आता हूं तो उसकी धार्मिकता मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। But if I say that Lord, I don't deserve anything, but only your righteousness, then I receive justification from Him. लेकिन उसके सामने आकर मैं यदि ये मनसा रखूं कि प्रभु मैं इसको बिल्कुल भी मैं इसके योग्य नहीं हूं, तब मैं उसकी धार्मिकता को प्राप्त कर पाऊंगा। Read of a parable in Matthew 22. हम एक दृष्टांत को पढ़ते हैं मत्ती उसके 22 अध्याय में। King called many people for his son's marriage. और वहां पर एक व्यक्ति जो है अपने बेटे की विवाह में बहुत सारे लोगों को भोज के लिए बुलाता है। And finally nobody was turning up, so he called whoever was there on the road. और वहां पे वो बहुत सारे लोगों को बुलाता है, लेकिन अंत में कोई भी नहीं आता है, इसलिए वो जो कोई भी है सड़क के ऊपर उन सबों को बुलाने के लिए कहता है। And then he calls everyone and everybody comes to the wedding feast. और वहां पर वो सब लोगों को बुलाता है और वो विवाह के भोज के अंदर वो लोग आते हैं। And we read in verse 12, there was one man who came without the wedding clothes. और वहां पे 12 वचन में एक व्यक्ति जो है वो बिना विवाह का वस्त्र पहने हुए उस भोज में आया। That means the king had given a cloth for everyone to wear for the wedding. और इसका मतलब वो राजा ने हर व्यक्ति को उस विवाह में आने के लिए एक पोशाक को, एक वस्त्र को दिया था कि उसको पहनकर उस विवाह में आना है उनको। But this man did not wear that dress. He thought his dress was good enough. और इस व्यक्ति ने इस पर माना कि उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना, उसने सोचा कि उसने जो कपड़े पहने वो अच्छे और बढ़िया है। But the king was so angry with him that he threw him out and into outer darkness. लेकिन राजा वहां पर इतना क्रोधित होता है, उसको कहता है कि बाहर के अंधियारे में उसको डाल दो। So this story tells us the importance of how important it is to receive the justification by faith. और ये कहानी जो है दृष्टांत हमको बताता है कि विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता को प्राप्त करना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। So it is only one basis on which I am accepted before God, that is, He justifies me. और इसी आधार के ऊपर मैं परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाता हूँ। If I come in the basis of what I have done or what I have achieved, I will be thrown out. और यदि मैंने जो कुछ किया है, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया, उसके आधार पर परमेश्वर के सामने आता हूं तो मैं बाहर फेंक दिया जाऊंगा। Many times we see in the life of God's children that sometimes they come to God on the basis of what they have done for God. और जो लोग हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो उन्होंने किया उस काम के आधार पर आते हैं। Sometimes we might have been born again. At that time we receive only the righteousness of Christ, but after some years we feel that our righteousness is good enough. और जब पहले परमेश्वर के पास आते उसके ग्रहण करते, तब हम उसकी धार्मिकता को अपने ग्रहण में करते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद हमें लगता है कि हमारी धार्मिकता वो बेहतर है। So even if we are born again and we have overcome sin in many areas of our life, still only one basis on which we can stand before God is the righteousness of Christ clothing us. और यहाँ तक कि हमारा नया जन्म हुआ होगा, हमने यीशु मसीह को अपनाया होगा, लेकिन एक ही आधार है, उसके बल पे उसके सामने हम खड़े रह सकते, वो है यीशु मसीह। So we need to always bear that righteousness of Christ on us every day. और प्रतिदिन हमें वो यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर धारण करना है। When I come before God, I know that only on the basis of Christ I am accepted. और जब मैं परमेश्वर के सामने आता हूँ, मैं ये जानना जरूरी है कि केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा या उसके आधार पर ही मैं अपनाया जाता हूँ। That is one truth. And the third thing which we learn from the Word of God is He has predestined us. और दूसरी चीज जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं वो ये है कि उसने पहले से हमको ठहराया है। In Romans 8:29 we read this amazing truth. और इस सत्य को हम रोमियो के 8 अध्याय के 28 वचन में हम पढ़ते हैं। 29 verse. 8:29। We read that for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn
among many brethren. और वहां लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसकी पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। Predestined means he has fixed my destination from the beginning. और पहले से ठहराना मतलब इसका मतलब कि पहले से परमेश्वर ने मेरा मंजिल जो है जहां मुझे जाना है उसको पहले ही आदि में ही उसको तय करके रखा है। He knows the end from the beginning. और वो परमेश्वर पहले ही आदि में ही अंत को जानता है। And he predestined me so that I become like his only begotten son, Jesus Christ. और उसने मुझे इसलिए ठहराया है कि मैं उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में बनूं। We know that when Adam sinned, he lost the image of God. और जब आदम ने पाप किया तो आदम ने वो परमेश्वर की जो प्रतिमा जो है उसका स्वरूप उसने खो दिया। And we all have sinned and we have all lost the image of God and we have terribly come short of God's image. और हमने भी पाप करके परमेश्वर की जो प्रतिमा जो है उसका स्वरूप खो दिया और उसकी महिमा से हम रहित हो चुके हैं। And we have this tremendous promise which God has given us that he has predestined us to become like his only begotten son. लेकिन एक अद्भुत वायदा वो यहाँ पर प्रतिज्ञा देता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही ठहराया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। It's one thing to understand this in our head, but God has to open our eyes to see that he has called me to become like his son Jesus Christ. और सच में परमेश्वर हमारी आंखों को खोले ताकि हम देख सके कि उसने इसलिए बुलाया है, मुझे ठहराया है ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में मैं बन सकूं। He not called me just to enter heaven and enjoy the riches there. और परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि केवल स्वर्ग में वहां पर प्रवेश करके वहां की बातों का मैं आनंद उठाऊं, इतना ही नहीं, but to become exactly like Jesus Christ. लेकिन मुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं यीशु के समान प्रतिरूप ऐसे ही बनूं मैं। In 1 John 3:1, पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन, we read that see how great a love the Father has bestowed on us that we would be called the children of God, and such we are. और वहां लिखा है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। So we have all seen that love of God. But verse 2 says, beloved, now we are children of God, and has not appeared yet what we shall be. But we know that when he appears, we will be like him, and because we will see him just as he is. और दूसरे वचन में कहता है हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। So my eyes were opened to see this love of God in having this predestination for me that I will become like Jesus Christ. और मेरी आंखें परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मेरी इस प्रकार आंखें खुले ताकि मैं देख सकूं कि कैसे उसने मुझे अपना संतान परमेश्वर की संतान बनाकर पहले से ठहराया है उसकी संतान के रूप में बनने के लिए। And to become exactly like Jesus Christ. और जैसा यीशु है उसी प्रकार बनने के लिए। So we can just think that such a sinner like us, God has chosen and predestined so that I will become like Jesus Christ. हम सोच सकते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं, हमको परमेश्वर ने चुना ताकि हमें यीशु के समान प्रतिरूप, उसके समान ही उसकी प्रतिरूप हमको बनाए। Let God write that destination in our heart that we want to become like Jesus. और परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर उस मंजिल को लिखे कि उसने पहले से हमको ठहराया है यीशु के समान बनने के लिए। In Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 और 5 वचन। We read that just as he chose us in him before the foundation of the world that we would be holy and blameless before him in love, he predestined us to the adoption as sons through Jesus Christ. और वहां लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। So Jesus is our elder brother and God wants all his younger brothers to be exactly like the eldest son. और यीशु मसीह जो है हमारे एक बड़े भाई है और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी हमारे बड़े भाई यीशु के समान बने। So this is something we accept as a faith that God has done. This is the word of God
and we accept it, and we have this hope in us. और ये परमेश्वर का वचन है, मानकर हम हमारे जीवन में इसको ग्रहण करते हैं और इस कारण हमारे लिए एक आशा है. That is why Paul says in Galatians 6:14 that I do not boast in anything but the cross of Jesus. इसलिए गलातियों की पत्री में दूसरे अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं किसी क्रूस को छोड़ के किसी और चीज पर घमंड नहीं करता. Because all these things, forgiveness, justification, predestination, all this is because of the cross of Jesus. और केवल यीशु मसीह के उस क्रूस के कारण ही ये धर्मी ठहराना या पहले से ठहराया जाना ये सब कुछ संभव हो पाया है. So I wanted to, when we read in John 3, behold what 1 John 3, behold what manner of love the Father has bestowed on us. We need to understand the love of the Father more. और जैसे पहला यूहन्ना 3:1 के अंदर लिखा गया है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, हमें परमेश्वर के हम संतान कहलाइए. इधर यहाँ पर परमेश्वर पिता के प्रेम के संबंध में. So I was thinking of God's love or the Father's love in relation to sending Jesus on the cross. और जब मैं पिता के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के बारे में संबंध में सोचता हूँ तो उस प्रेम को जोड़ता हूँ कि कैसे उसने यीशु को मेरे लिए भेजा है इस संसार में. In Romans 8:32 it says that he did not spare his only son but gave him up for us all. रोमियो 8:32 के अंदर लिखा है कि उसने तो अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, लेकिन हम सबों के लिए उसने दे दिया. We know that before Jesus went to the cross, he prayed in Gethsemane. और हम जानते हैं उस क्रूस के ऊपर जाने से पहले यीशु मसीह ने उस गत्समनी के बाग में प्रार्थना इस प्रकार की. And he prayed with vehement cries, and his heart was really burdened, and his soul was really burdened, and he prayed, Lord, if it is possible, remove this cup from me. और उसका जो हृदय जो है वो बहुत ही उस दुख से और बहुत ही वेदना से भरा हुआ, तो प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि हो सके पिता तो ये प्याला मुझसे तो दूर कर. This was something very deep pain in Jesus' heart, very deep pain and anguish in Jesus' heart, which he was expressing to his own father. और ये जो वेदना है, जो दर्द जो है उसके हृदय में, यीशु के हृदय में थी, वो अपने पिता के साथ वो व्यक्त करता है उसको. The father who listened to every prayer of Jesus did not grant this request of Jesus. और वो पिता जो यीशु मसीह की सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता था, इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया. He did not grant the request that he did not remove the cup, but he helped Jesus endure the cup. और उस पिता ने उस प्याले को हटा नहीं दिया, पर उस प्याले को लेने के लिए सच में उसको सहायता किया यीशु की. We read in Isaiah 53 verse 10 and 11. और यशायाह 53 के अंदर 10 और 11 के अंदर इस प्रकार पढ़ते हैं. It says, "For the Lord was pleased to crush him, putting him to grief." And in verse 11 it says, "As a result of the anguish of the soul, he will see to it and be satisfied." और वहां पे लिखा है कि 10 वचन में, तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले. और उसके बाद वो लिखा है कि 11 वचन में, अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी वो तेरे को धर्मी ठहराएगा. We see the extent of God's love in allowing Jesus to go through such pain and turmoil. हम परमेश्वर के प्रेम की मात्रा को यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उस कुचले जाने की उस पीड़ा के द्वारा उस बेटे को, उसके अपने यीशु को उसने गुजरने दिया. And on the cross, when he was dying, we know that people were mocking at him and saying, if you can, you save yourself. और उस क्रूस के ऊपर जब वो मृत्यु को वो क्रूसित किया जा रहा था, बहुत लोगों ने उसको मजाक को ठट्ठा किया कि तू अपने आप को बचा ले. And they also said something in Matthew 27:43 we read. They said that if he trusted in God, let God rescue him. और वहां पे मत्ती 27 में क्या है कि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वो परमेश्वर उसको छुड़ाए. So they were even challenging God. God, if God loves him so much, let God rescue him, because he said he is the son of God. क्योंकि लोग वहां पर उसको दे रहे थे, क्योंकि यीशु ने कहा परमेश्वर का पुत्र है, तो वो अपने आप को वहां से नीचे उतरकर अपने आप को बचाए. उस प्रकार की चुनौती दे रहे थे यीशु को. Not just Jesus, but also the Father. They were challenging Father that if he is your son,
rescue him. और यहाँ पर वो केवल यीशु को नहीं लेकिन पिता को भी उसको चुनौती दे रहे थे कि यदि वो उसका बेटा है, उसे प्रेम करता है तो उसको बचाए। God could have easily saved Jesus and destroyed all of human mankind, and nothing. It would have cost him nothing. और ये परमेश्वर जो पिता जो है वो बहुत आसानी से यीशु को बचा सकता था, बहुत ही आसानी से वो सबको नाश कर सकता था। But because of his tremendous love for us, he did not do that. और उसके अद्भुत प्रेम के कारण उसने ऐसा नहीं किया। And he just ignored those calls, and he suffered, and he let Jesus suffer. और उसने इन बातों को नजरअंदाज करके उसने अनुमति दी कि यीशु मसीह इन सारे पीड़ाओं को, उस दुखों को सहे। Because he had predestined us, and he had already thought about us. क्योंकि उसने हमको पहले से ठहराया था और हमारे बारे में उसने पहले से ही सोच लिया था। And that is how we see the love of the Father there. और इसी प्रकार हम वहां पर उस पिता के प्रेम को देख पाते हैं। And finally, when Jesus saw that the Father had actually forsaken him for 3 hours on the cross, he finally cried out, my God, why have you forsaken me?" और जब अंत में जब यीशु मसीह ने इस बात को भूल गया कि उस क्रूस के ऊपर 3 घंटे के लिए उसके पिता ने उसको त्याग दिया था, तब वो कहता है कि हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? So there we see that love of the Father, that when our sins were put out on Jesus, he even turned face from his son. और यहाँ पर हम उस परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारे सारे पापों को यीशु को जब लाद दिया गया तो उसने अपने बेटे से अपने उस मुख को मोड़ लिया। And there also he did not save his son there, and he allowed him to go through such turmoil. और वहां पर अपने बेटे को वो नहीं बचाता है, नहीं छुड़ाता है, लेकिन उस संकट, उस पीड़ा से उसे गुजरने देता है। So if we meditate more and more on his love for us, our love for our Father and for Jesus will increase in our heart. और जितना अधिक और अधिक हम परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति जो है उसके ऊपर मनन करते जाएंगे तो और अधिक हमारा प्रेम परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के लिए और अधिक बढ़ता जाएगा। We also read one more truth which we understand is Jesus intercedes for us. और एक सत्य को हम जो सीखते हैं और ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता है। So today, it's not just that Jesus died on the cross several years ago. Even today, he is interceding for us. और केवल उतना ही नहीं कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया और स्वर्ग में चला गया, लेकिन आज भी हमारे पापों के लिए, हमारे लिए वो मध्यस्थी करता है। In Romans 8:34, we read that. और रोमियो उसका 8:34 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, Who is he who condemns? Jesus Christ is he who died, yes, rather who is raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. और रोमियो 8:34 में जैसे वो कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। We also read that in Hebrews 7:25 that he ever lives to make intercession for us. और इब्रानियों 7 में लिखा है कि वो इसलिए जीवित है कि वो हमारे लिए वहां पर मध्यस्थी करता है पिता के सामने। So that is so comforting and encouraging to know that Jesus Christ actually intercedes for me before the Father. और ये बहुत ही सांत्वना और प्रोत्साहन देने वाला है कि यीशु मसीह पिता के सामने मेरे लिए नित्य मध्यस्थी करता है। So that is the love of God for us. और ये परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है। And one more thing which we see of the love of God in Hebrews chapter 12. और इब्रानियों 12 अध्याय के अंदर परमेश्वर का प्रेम है उसके बारे में देखते हैं। It says in verse 5, उसके वचन 5 में, verse 6, that for those whom the Lord loves, he disciplines. और वचन 6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। So as we understand the love of God in all these aspects, we also understand that when God disciplines us, he loves us so much. और जैसे हमने अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर के प्रेम को जाना, और एक क्षेत्र जहां पर परमेश्वर प्रेम को बताता है हमें ताड़ना देकर। So he does not allow us to go and perish in sin, but he always disciplines us when we sin. और वो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़कर नाश हो जाए, लेकिन वो हमें चाहता है कि हमारी वो ताड़ना करे, हमें अनुशासित करे।
and he disciplines us, it says in verse 10, so that we may share his holiness. और वहां पे हमें इसलिए ताड़ना देता है ताकि हम उसके पवित्रता के अंदर सहभागी हो सके. So as we understand God's love in various aspects, we also understand that he loves us when he disciplines us also. और जैसे अलग अलग माध्यमों और अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं, तो जब वो हमारी ताड़ना करता है, अनुशासित करता है, उसके माध्यम से भी हम उसके प्रेम को जान पाते हैं हमारे लिए. But all these things we can understand only when the Holy Spirit has been poured out in our hearts. ये सारी चीजें हम तभी समझ पाएंगे, जान पाएंगे जब पवित्र आत्मा हमारे हृदयों के ऊपर इन बातों को उंडेलेगा. Because we read in Ephesians chapter 3, और इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं. from verse 16, we read that to be strengthened with power through Spirit in the inner man. और वहां पे 16 वचन में लिखा है कि हम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाते हैं. And then it says, so that Christ may dwell in your hearts through faith. और विश्वास के That you being rooted and grounded in love. और 17 वचन में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be you may be filled up to all the fullness of God. और ताकि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. So this is what the Holy Spirit helps us to understand, the length and breadth and depth and height of God's love. और यही पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आकर परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई को वो बताता है, so that we can be rooted and grounded in love. ताकि हम उसके प्रेम में नींव और जड़ पकड़ते हुए हम बने रह सकते हैं. The foundation of my life, anytime it is the love of God. और मेरे जीवन की नींव जो है हमेशा परमेश्वर का प्रेम ही होनी चाहिए. I have never founded on how good I lived the last week, or did I sin, or did I overcome sin, or did I share the gospel with someone? No, my only foundation is the love of God. मेरे जीवन की कभी भी मैंने जो भले काम किए कि कितना अच्छा मैंने पाप नहीं किया है या मैंने किसी को सुसमाचार बताया, इन बातों के ऊपर आधारित नहीं, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति जो है उसी पर हमारी नींव आधारित होनी चाहिए. That is why Paul says in 2 Corinthians chapter 5. और पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों की 5 अध्याय में वो कहता है, Just read that verse and close. 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय Verse 14. उसका 14 वचन. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. और वहां लिखा, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए. And he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा. So may God open our hearts so that we know the love of God. सच में परमेश्वर हमारे हृदयों को खोले ताकि हम हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को जान सके. The love of God which has blotted our past sins. और परमेश्वर के प्रेम ने जो हमारे अतीत या भूतकाल के सारे पापों को पूरी तरह से मिटा दिया है. The love of God which has justified us. और परमेश्वर के प्रेम ने जिसने हमें धर्मी ठहराया है. The love of God which has predestined us so that we can be conformed to the image of Jesus Christ. और ये परमेश्वर के प्रेम ने हमें पहले से मसीह में ठहराया है ताकि हम उसके पुत्र यीशु की समानता में, उसके स्वरूप में ठहरे. The love of God which gave his only begotten son. और ये यही परमेश्वर का प्रेम जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया. Love of God which disciplines us. और ये परमेश्वर का प्रेम जो हमें ताड़ना देता है और हमें अनुशासित करता है. And this love of God has been poured in our hearts through the Holy Spirit. और यही परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है. May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. Thank God for
we really praise God for God's love that we need to more and more meditate on. और हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए, और हमें और उस पर मनन करने की जरूरत है. I was thinking that when we read the Bible, there are two ways to read it. और मैं सोच रहा था कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो दो तरीकों से हम इसको पढ़ सकते हैं. One is to read the Bible to know all the commandments and whatever commandments are what I need to obey. That is one way to read. एक तरीका या एक मार्ग ये है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सी आज्ञाएं हैं जिनका पालन मुझे करना है. And second way to read is knowing the heart of God when I read the Bible. और दूसरा तरीका है कि जब मैं बाइबल पढूं तो मैं परमेश्वर के हृदय को जानूं. The Pharisees read the Bible, but they had their scrolls and all, but they never met a person there. They just met the letter of the Lord, letters. They just read letters in the Bible. जब फरीसी बाइबल पढ़ते थे तो बाइबल में उन्होंने काफी आज्ञाओं को पाया, पर बाइबल में वो उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सके. वो सिर्फ अक्षरों को ही पढ़ सकते थे. That is why till the end they were dead, because they didn't recognize the living God who was there with them. और इसलिए आखिर तक वो सिर्फ मृत थे, वो मरे हुए थे, क्योंकि बाइबल में जो जीवित परमेश्वर है उन्होंने उस परमेश्वर को नहीं जाना. Jesus always is telling us, inviting us, come to me, all who are weary and heavy, come to me, I will give you life. Come to me, I am the bread of life. यीशु मसीह हर समय ये न्योता देता है कि मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं जीवन की रोटी हूँ. If I just read the Bible to just as a letter, I will not get that. I will not come to the Bible should lead me to Jesus. और अगर मैं बाइबल को सिर्फ अक्षरों की तरफ पढ़ता हूं तो वो बाइबल मुझे कहीं भी मेरी मदद नहीं करेगा. बाइबल मुझे यीशु मसीह की ओर ले जाना चाहिए. Lead me to the heart of Jesus. What he is telling me, I want to listen. As it's a personal communication with Jesus. और यीशु मसीह का हृदय क्या कह रहा है, यीशु मसीह मुझसे क्या कर रहा है, ये मेरा उसके साथ व्यक्तिगत होने वाली बातचीत है. It should never become the Bible or any message that I hear should lead me to Jesus. To Jesus is the everything. He is the center of everything. भले मैं बाइबल पढूं या किसी संदेश को सुनूं, उन दोनों के द्वारा मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, क्योंकि यीशु मसीह सारी चीजों का केंद्र है. See, when I listen to a message that says that I should take up my cross, or if I listen to a message that says I should be faithful in everything, I first look at Jesus. I look at Jesus, how he lived. अगर मैं एक संदेश को सुनता हूं जिसमें मैं सुनता हूं कि मुझे अपने क्रूस को हर दिन उठाना है, या जो कुछ मैं करता हूं उसमें मुझे विश्वास योग्य रहना है, तो मुझे पहले यीशु मसीह की ओर देखना है कि यीशु मसीह हर दिन कैसे जीता था. It says in Hebrews that Jesus Christ was faithful. So I see Jesus being faithful, and I want to, by the Holy Spirit's power, Lord, you make me faithful like you were faithful. इब्रानियों में लिखा है कि यीशु मसीह विश्वास योग्य था, और जब मैं देखता हूं कि यीशु मसीह विश्वास योग्य था तो मैं पवित्र आत्मा से मांगता हूं कि पवित्र आत्मा जैसे यीशु विश्वास योग्य था, तू मुझे भी विश्वास योग्य बना. As we heard today that it's the love of God, the God's love that is shed into our hearts that should motivate us to follow him. It's not someone is banging your head and telling you should follow God. It's not like that. It is a love of God that fills our hearts, and we see how much he has done for us. That motivates us to obey him and love him. और जैसा हमने आज सुना कि ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे दिलों में उंडेला गया है. ये ऐसा नहीं है कि कोई मुझ पर जोर कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि तुम परमेश्वर के पीछे चलो, पर उसका जो प्रेम है मेरे अंदर, उसके वजह से मैं उसके पीछे चलना चाहता हूँ. That's why it is important, Lord. I want to always look unto Jesus, how his love for me and what all he did for me. That should be the center of everything. That will motivate me to love him more and to obey him. और इसलिए जब कभी मैं ये देख पाऊंगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने मुझसे कितना प्रेम किया, इसी के द्वारा मैं उसके प्रति और प्रेम रख सकता हूँ. And still, that also when I try to obey him, it's he is with me to help me. It is not I am doing it, struggling with my own strength. Jesus, you are there with me. His presence is there. His power is there to help me to obey. और जब मैं आज्ञा पालन भी कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं अपने सामर्थ से, अपने कठिन परिश्रम से आज्ञाओं का पालन कर सकता हूं. यीशु मसीह खुद वहां है, उसकी सहायता है, उसका सामर्थ है, जिसके द्वारा मैं उसकी आज्ञाओं को मान सकता हूं. I cannot separate the Bible from Jesus. Jesus and the Bible are, the gospel and Jesus is always together. मैं यीशु मसीह और बाइबल को अलग नहीं कर सकता. यीशु मसीह और बाइबल एक साथ है, यीशु मसीह और सुसमाचार एक साथ है. When Jesus spoke to that two people in Emmaus, he was revealing himself to them. He was revealing how what himself he was revealing. That is what the Bible does.
it reveals about Jesus more and more to me. जब वो इमाउस के रास्ते पर वो दो शिष्यों के साथ यीशु मसीह बातचीत कर रहा था तो वो अपने आप को बाइबल से प्रकट कर रहा था, और जब कभी मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो यीशु मसीह अपने आप को खुद प्रकट करता है। I want to know more of Jesus when I read the word by the Holy Spirit. It shows me so many things about Jesus. और जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह के बारे में अलग-अलग चीजों को दिखाए। There is an instance in if you read in Matthew 25. और एक घटना को हम मत्ती के 25वें अध्याय में पढ़ते हैं। It is written about it is written about Jesus telling about in the from 32 if you read. अगर हम 32 वचन के आगे पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह कह रहा है He will separate the sheep and the goats. कि वो भेड़ों को और जो बकरियां हैं उनको अलग करेगा। And it's written there in the in 34 it's written, "Come, you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." और 34 वचन में लिखा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। Naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। Then it says, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? And when did we see you a stranger and invited you in, or naked and clothed you? When did we see you sick or in prison and come to you? और फिर वो उत्तर धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? What does this mean? Doesn't mean that they didn't do anything. They did it because they were so much filled with the love of God that they couldn't remember what they did. इसका ये मतलब नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, इसका ये मतलब था कि उन्होंने जो कुछ किया वो इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण थे। If I as a parent do something for my children, I don't write a list of things. I did this, small things. I don't, because it is out of love. I do so many things for my children. जब माता पिता होने के तौर पर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करता हूं तो मैं उसकी कोई सूची नहीं रखता कि हाँ मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया ये किया ये किया। वो सिर्फ मेरे प्रेम की वजह से मैं अपने बच्चों के लिए ये सब कर रहा हूँ। That is exactly the way God wants me to love Him and do everything for Him. That I forget everything. I can't see anything. I can only see His love. और परमेश्वर यही मुझसे भी चाहता है कि मैं उसके लिए जो कुछ करूं मैं उसके प्रेम की वजह से करता हूं। मैं सारी चीजें भूलकर सिर्फ उसके प्रेम को देखता हूं। And it says the righteous will. It's written there. The righteous will say to Him. That means those who are declared righteous by God. और यहाँ लिखा है कि तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। इसका मतलब जिनको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। And it is written also that prepared for you, the kingdom was prepared for you before the foundation of the world, from the foundation of the world. और वहाँ ये भी लिखा है कि जो राज्य जगत के आदि से उनके लिए तैयार किया गया है। So we have been chosen by God to love Him in such a way that we don't remember what we have done for Him. और परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उससे प्रेम इतना करें कि हमको ये भी स्मरण नहीं रहता हमने उसके लिए क्या किया है। A really loving parent, father or mother will not remember anything. They are full of love. They say to the children, they don't feel it difficult to do so many things for Him because it's out of love they do it. एक सचमुच प्रेम करने वाला पिता या माता उसको याद भी नहीं रहता उसने क्या क्या किया, वो सिर्फ प्रेम की वजह से अपने बच्चों के लिए चीजों को करता है। There is another group that is written below. If you read, it's written about the group that when Jesus tells them that they didn't, they tell Jesus that they did so many things. They say, when did we see you hungry or naked, or so many things they say. और यहाँ दूसरा भी एक समूह है लोगों का जो परमेश्वर यीशु से कहते हैं कि हमने कब तुझे बीमार देखा, हमने कब तुझे भूखा देखा। So that means they didn't do out of love. इसका मतलब है उन्होंने प्रेम से इन सारी चीजों को नहीं किया। When we do things out of love for Jesus, I will not remember whatever I have done. I will forget it. I will not look for appreciation or thankfulness because I am doing it for Jesus only and not for no one else. और जब मैं यीशु मसीह के प्रेम के वजह से उसके लिए कुछ करता हूं तो मैं वो सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं ये सारी चीजें सिर्फ प्रेम की वजह से कर रहा हूं, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए नहीं।
Even if I do something at home, like maybe I'm cooking something, or I'm washing the utensils, or I'm cleaning the house, I'm doing it because I love Him. और मैं घर पे भले खाना बनाऊं या साफ सफाई करूं या बर्तन मांजूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं. Then I will be free from seeking the appreciation and honor of man, because I'm not bothered if they tell me anything, because I only do it, Lord. Because you loved me so much, I do this for you. और फिर मैं मनुष्यों से आदर प्राप्त करना या मनुष्यों से जो वाह प्राप्त करना, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं सब कुछ करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं. I really pray that I have not reached I have not the perfection, but I really pray, Lord, I want this life where I love you with all my heart. और मैं सचमुच प्रार्थना करता हूँ, मैं इस सिद्ध स्थिति में नहीं पहुंचा हूं, पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रभु ऐसा जीवन चाहिए जब मैं अपने पूरे हृदय से तुझ पर प्रेम करूं. I want to do everything because of His love for me and my love for Him. मैं सब कुछ सिर्फ इसी वजह से करना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और मैं उससे प्रेम करता हूँ. That is the only love. That is the only life and love that will last till the end of our life. Otherwise, we will shake in between. क्योंकि ये इकलौता जीवन है और यही प्रेम है जो हमारे जीवन के अंत तक टिका रहेगा. अगर हमारे पास ऐसा प्रेम नहीं है तो वो जरूर बीच में कहीं डगमगाएगा. That's why, just like Jesus gave Himself for me, I want to give myself for others. और जैसे यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, वैसे मैं भी औरों के लिए अपने आप को देना चाहता हूँ. I want to know more of His love, so that when I see Him, when I see His love, I can love like Him. मैं औरों के लिए भी अपने आप को देना चाहता हूँ, ताकि मैं जब उसको देखूं तो उसके प्रेम को देख सकूं. The Holy Spirit shows me Jesus, and He also helps me to become like Jesus. पवित्र आत्मा ना केवल सिर्फ मुझे यीशु मसीह को दिखाता है, बल्कि यीशु मसीह के जैसे होने के लिए मेरी सहायता करता है. Obeying His commandments should never become a burden. If it's becoming a burden, means I am not doing out of love. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ये कभी भी एक बोझ नहीं होना चाहिए. अगर वो आज्ञाओं को मानना मेरे लिए एक बोझ हो रहा है तो जरूर मैं प्रेम के बिना आज्ञाओं को मानने की कोशिश कर रहा हूँ. I just pray, Lord, give me such a love that I can love others like you loved, and to obey your commandments out of love. और मैं ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू मुझे प्रेम दे, ताकि तू जैसे औरों से प्रेम करता है मैं भी कर सकूं, और मैं तेरी आज्ञाओं को भी प्रेम की वजह से मान सकूं. And I believe God is very good and so good that He will fulfill that in our lives. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इतना भला है, वो इतना भला है कि वो जरूर ये मेरे जीवन में, हमारे जीवन में पूरा करेगा. Amen. आमीन. I thank God for what I heard. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो कुछ मैंने सुना उसके लिए. I was thinking about same line, how much God has loved me. और मैं इसी बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया है. I just want to read one verse from Micah chapter 7 verse 18. और मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ मीका नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 18 वचन से. Yeah, can you please read sir? Yes. मीका 7 उसका 18. तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढाप दे. वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है. Yes, here we see that God delights in unchanging love towards me. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर को ऐसा, उसके पास ऐसा प्रेम है जो कभी नहीं बदलता मेरे प्रति. His love is very much unconditional and abundant forever. और उसका जो प्रेम है वो किसी भी शर्त के बिना है और हर समय वो बहुत ही विपुल और भरपूर है. Even though He knew me that there is nothing good dwells in me, I am just made out of dust, and still His love is so unconditional. यद्यपि वो जानता है कि मेरे में बिल्कुल कुछ भलाई नहीं है, मैं बस मिट्टी का बना हूँ, फिर भी उसका मेरे प्रति जो प्रेम है वो बिना शर्त है. In Zephaniah 3:17 we know that God sings over us, He rejoices over us, He loves us so much. और हम सफन्या 3:17 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे बारे में गाना गाता है मगन होकर. In Lamentation 3:23 it says His mercies are new each and every day. और विलाप गीत उसके 3:23 में लिखा है कि उसकी दया हर दिन नई होती है. He is so merciful that He is every day, His mercies are new to me. Every day He sees me when I get up. He sees me as if I never sinned before. Like today we heard, He has justified us.
और वो हर दिन मुझ पर इतनी दया करता है कि मानो हर दिन वो पहले बार मुझ पर दया कर रहा है, और जैसे हमने आज सुना, वो मुझे धर्मी ठहराता है हर दिन। He is showing us so much merciful, such an extent that he loves me as much as he loves Jesus. और उसने मुझ पर इतनी दया की है, वो मुझसे इतना प्रेम करता है जितना प्रेम उसने यीशु मसीह से किया। So one more verse I just want to read, that Jeremiah chapter 31 verse 3. एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, यिर्मयाह उसका 31 और उसका 3 वचन। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। Yes, here we read that his loving kindness draws me close to him every day. और यहाँ लिखा है कि उसकी जो दयालुता है, उसकी जो करुणा है, वो मुझे उसकी ओर खींचती है। Through his love, he draws me and each one of us close to him every day. और उसके प्रेम के द्वारा वो मुझे और हम सबको उसकी ओर खींचता है हर दिन प्रतिदिन। Jesus himself said, no one can come to me unless my Father draws him and sends to me. और यीशु मसीह ने खुद भी ये कहा था कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता तब तक जब तक पिता उसको मेरी ओर खींचकर मेरी ओर भेजता नहीं। So there's one word in 1 Corinthians chapter 1 verse 9. और पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 9वें वचन में ये लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। God is so faithful, he has brought me to Jesus Christ to have fellowship with him. परमेश्वर इतना सच्चा या इतना विश्वास योग्य है कि उसने मुझे बुलाया है ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में रहूं। Because Jesus is the source and he is the author of our life. क्योंकि यीशु मसीह ही वो स्रोत है और मेरे विश्वास का वो करता है। He is the author of our faith. हमारे विश्वास का वो करता है। He is the author of our salvation. और हमारे उद्धार का वो स्रोत है। He is the author of our love. और हमारे प्रेम का भी वही स्रोत है। And because he has loved us so much and he has given up himself for us. और क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया। As we heard in Romans that 5, we heard that when I was ungodly, when I was a sinner, when I was dead in my spirit, when I was enmity in my heart, he has loved me so much, he has given himself for me. और जैसे रोमियो 5वें अध्याय में लिखा है कि जब मैं भक्तिहीन था, जब मैं परमेश्वर का शत्रु था, जब अपने पाप में मैं मृत था, उसने मुझसे प्रेम करके अपने आप को मेरे लिए दे दिया। He has taken away all my sin. He has become sin for my sake to justify myself, justify me. उसने मेरे सारे पापों को ले लिया। इतना ही नहीं, वो मेरे लिए खुद पाप बना ताकि वो मुझे धर्मी ठहरा सके। And he became so poor that he can make me rich towards God. और वो खुद इतना गरीब बना ताकि वो मुझे परमेश्वर के प्रति धनवान बना सके। He has taken all the curses over me so that I can become a source of blessing to others. उसने मेरे सारे श्रापों को ले लिया ताकि मैं दूसरों के लिए एक आशीष का स्रोत बन सकूं। So nothing can separate us from love of Christ, Bible says. और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के प्रेम से कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती। Only as we hear that more and more we meditate of God's love, more and more meditate of Jesus, how much he loved us, how much he has been merciful to us, how much he has forgiven us, that much only we can love him. जितना हम दिन प्रतिदिन हर समय इस पर मनन करेंगे कि कितना यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, कितना यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया, उतना ही मैं उससे प्रेम कर सकता हूँ। He has commanded us to you love others as I have loved you. और उसने हमें ये भी आज्ञा दी है कि तुम औरों से वैसे प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। Be merciful to others as I have merciful to you. दूसरों पर वैसी दया करो जैसे मैंने तुम पर दया की है। Forgive others from the heart as I have forgiven you. दूसरों को अपने दिल से वैसे क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है। This is impossible within my strength, myself. Only the more of God's love I experience, I taste. That much extent only I can love others, I can be merciful to others, and I can forgive others. और ये मेरे सामर्थ्य से, मेरे क्षमता से करना असंभव है। बस जब मैं परमेश्वर के प्रेम को हर दिन देखता हूँ, उस पर मनन करके उसको अनुभव करता हूँ, फिर ही मैं दूसरों के प्रति प्रेम रख सकता हूँ, उनको क्षमा कर सकता हूँ, उन पर दया कर सकता हूँ। As we hear that his love is the only source in our life to love others.
और जैसे हमने सुना कि उसका प्रेम वो इकलौता स्रोत है जिसके द्वारा हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं. As he said, if you love me, you obey my commandments. जैसे उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे. Only his love only can help me to obey his commandments. ये केवल उसका प्रेम है जो मेरी सहायता करेगा उसकी आज्ञाओं को मानने में. Even that service which I can do for him, and as he said to Peter, if you love me, you feed my sheep or feed my lambs. और जो सेवा भी मैं उसकी करता हूँ, जैसे उसने पतरस से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे भेड़ों को तुम खिलाओ. Even if I want to serve him, that's only his love can only encourage me and motivate me. Otherwise, I can get tired and I can do myself nothing. और अगर मैं उसकी सेवा भी करना चाहता हूं तो सिर्फ उसका प्रेम ही मुझे प्रोत्साहित करता है. अगर उसके प्रेम के द्वारा मैं सेवा नहीं करूं तो मैं थक जाऊंगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. Without knowing his love, how much of I service, that service can become dead work. उसके प्रेम को जाने बिना मैं कितनी भी सेवा करूं, वो सेवा सिर्फ एक मरे हुए काम के समान है. As we heard about Paul, that the love of God should compels us to live for him, to serve him. और जैसे ये पौलुस कहता था कि परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे ये सब करने पे मजबूर करता है. And finally, I just want to read one verse and end it. That is book of Colossians chapter 2, verse 6 and 7. और एक आखिरी वचन पढ़कर मैं अंत करना चाहता हूँ. कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय और वचन 6 और 7. कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय और 6 और 7. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और इसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो. Only he can help me to get rooted and built up in him through his Holy Spirit. और सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता है कि मैं उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाऊं उसके पवित्र आत्मा के द्वारा. And through meditating how much he loved me, and also taking up the cross in daily in my life, and also that only through the power of the Holy Spirit only I can live this life every day in my life. और इस पर मनन करके कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया है, और हर दिन अपने क्रूस को उठाकर और सिर्फ उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं इस जीवन को जी सकता हूँ. Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. हम लोग ने जो वचन सुना भाइयों से, मैं काफी आशीषित हूँ इस वचनों से. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपनी एक लौते बेटे को उस क्रूस की मृत्यु तक सहने दी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए वो प्रेम को दिखाया. लेकिन वो प्रेम कभी-कभी जब हमको दिखाना होता है, जब हमें स्ट्रांग रहना होता है, जब हम परीक्षाओं के द्वारा गुजरते हैं, तब शायद वो प्रेम हमारा कभी ना कभी वो ठंडा पड़ जाता है. इसी प्रेम को मैंने बीते हफ्ता में मेरे जीवन में मैंने ठंडा पाया, और उसी बात को मैं शेयर करना चाहती हूँ एक गवाही के रूप में. बीते हफ्ता लास्ट संडे हम लोग को पता चला कि मृत्युंजय के ऑफिस में एक उनके कलीग है जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और मृत्युंजय भी उनके कांटेक्ट में आए हैं. तो उस दिन जब हम लोग को ये न्यूज़ आया, हम लोग जब सुना तो हम लोग काफी डर गए. स्पेशली मैं काफी डर गई. तो वही डर चल रहा था मन में. मैं उनको बार बार बोल रही थी कि नहीं, आपको ऑफिस नहीं जाना है, आप क्वारंटाइन हो जाओ 14 डेज के लिए. और उनके ऑफिस से भी काफी फोन आ रहे थे कि आप कैसे हो, आप लोग ठीक हो या नहीं. ऐसे ही चल रहा था. इसी के बीच मृत्युंजय को भी काफी सर्दी था, मेरा गला दर्द था. तो ये सारी जो हो रही थी, तो और आसपास में हम जो सुन रहे थे उससे काफी मैं डर रही थी. तो ये चलते चलते मतलब इतना डर रही थी मैं, मेरा गला दर्द था, मैं जो कुछ भी गर्म पानी लेना वगैरह सब मैं कर रही थी. लेकिन वो डर कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना ज्यादा बैठ गया कि मैंने मम्मी से बात की, और मम्मी से पूछ के बोला क्या मैं एंटीबायोटिक ले सकती हूँ. तो मैंने वो भी किया, मैंने एंटीबायोटिक्स भी ले लिया कि मैं इतना डर रही थी. मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो प्रार्थना में जो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए थी मुझे, शायद वो कहीं ना कहीं वो डर की वजह से वो दाब रही थी. तो इसी दौरान क्या हुआ, जस्ट 2-3 दिन पहले हमारे बिल्डिंग में भी एक पेशेंट आया, जस्ट हमारे ऊपर के फ्लोर में. तो जब उनको उतारा गया, उसके 2-3 मिनट बाद फिर मैं भी लिफ्ट से उतरी, मुझे कहीं बाहर जाना था.
एंड मैं जब नीचे जाके सुनी कि वो पेशेंट को अभी अभी लेके जाया गया उसी लिफ्ट से, एंड उसके बाद वो लिफ्ट बंद कर दी गई, और मेरा डर तब से और भी ज्यादा बढ़ गया कि अब क्या होने वाला है। उसके दूसरे दिन फिर हम लोग ने सुना कि हमारे जो पास वाले बिल्डिंग है वहां से एक पेशेंट को निकाला गया एंड वो बिल्डिंग को सील कर दिया गया। तो ऐसे होते होते मेरा डर इतना ज्यादा बैठ गया, मैं और किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। हमेशा बस वही बात मेरे दिल में इधर उधर से घूम रही थी। हम मैं जो भी बोल रही थी तो वो हमेशा वही बोलने की मैं कोशिश कर रही थी। तो ऐसा होते होते मैं प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना में मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और मुझे परमेश्वर ने उस वचन को दिया। मैं मिशेल ब्रदर से बोलूंगी कि वो वचनों को थोड़ा पढ़ दे। हिब्रू 3:12। ब्रदर मिशेल। इब्रानियों 3:12 में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। धन्यवाद। मैं इस वचन को जब पढ़ रही थी तो मेरे वो आया कि मैं शायद इतना अविश्वासी हो रही हूँ कि परमेश्वर है, उसने मुझे प्यार किया, उसका प्रतिज्ञा है कि वो मुझे संभालेगा, फिर मेरा इतना अविश्वासी होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसके कारण मेरा जो आत्मिक जीवन है उससे मैं कहीं ना कहीं दूर हट रही थी। और इसी के बीच कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले मेरी जो बुआ थी वो गुजर गई। यद्यपि वो हिंदू थी, तो उनका हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनका डेथ हो गया। तो मैं जब ये सोच रही थी कि उनके पास वो होप नहीं है, परमेश्वर ने हमें वो होप दिया है कि हम अगर मर भी जाएंगे तो भी हम बचे रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो तब मैंने सोचा कि मेरे इस शरीर के बारे में सोचने का इतना कोई मतलब नहीं बनता। मुझे मेरे आत्मा के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे आत्मा को मैं कैसे बचा सकती हूँ। जैसे डैनी ब्रदर ने बताया कि हमारी सृष्टि से पहले ही हमारी सब कुछ तय है, हो चुकी है। तो हमें मैंने वो भी सोचा कि हमें उसी बात को धैर्य पकड़ के रखना है कि मेरी आत्मा कैसे मैं बचा सकती हूँ। तो ऐसे 1 थिस्सलुनीकियन चैप्टर 3 वर्स 8 ब्रदर मेरे लिए पढ़ सकेंगे आप? 1 थिस्सलुनीकियन चैप्टर 3 वर्स 8। 3 वर्स 8 क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित है। थैंक यू। हाँ, तो ये वचन मुझे काफी सारे वचन थे जो मुझे मिला कि मैं प्रभु में मुझे स्थिर है। या मैं सोच रही थी जब मैं ये सब हो रहा था मेरे बीच, तब मैं देख रही थी कि मुझे साम्स 91 याद आ रहे थे, सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में थे, लेकिन उस वचन पे मैं वो स्थिर नहीं हो पा रही थी। मैं हमेशा वो डगमग कर रही थी। लेकिन मैंने जब इस वचन को पाया कि अगर मैं प्रभु में स्थिर हूँ तो मैं बचूंगी। शायद ये मेरा फिजिकल बॉडी जो भी है वो शायद नाश हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला, ज्यादा से ज्यादा शायद वो मृत्यु होने वाली है, लेकिन वो मृत्यु के बाद जो जीवन है उस जीवन के लिए मुझे लड़ना है। और 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 9 में ऐसा लिखा है कि आप विश्वास में अटल रह के जो भी परेशानी है, जो भी परीक्षा है, उसको आप प्रतिरोध कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो। तो ये वचन ने मुझे काफी ढाढ़स दिया कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे मन को स्थिर होना है। आज का जो मेमोरी वर्स था याकूब 1:12, उसमें ऐसा है कि आप उस स्थिर रह के आप उस दौड़ के लिए दौड़ो, धीरज से उस दौड़ के लिए दौड़ो, फिर आप उस मुकुट को पा सकोगे। तो मैं कहीं ना कहीं देख रही थी कि मैं मेरे अंदर वो शांति खो रही थी, मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मैंने इस वचनों को देखा, मैंने प्रार्थना किया, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, उसने उसका प्रेम, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर दिया और मेरा मन को बहुत शांति मिला। और एक वचन मैं बोलना चाहती हूँ, नीति वचन 18 उसका 10। ब्रदर आप पढ़ देंगे मेरे लिए? हाँ, नीति वचन 18:10 लिखा, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है।
जी, धन्यवाद। तो ये वचन भी मुझे काफी ढाढ़स दिया कि परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है और उसको छोड़ के हमें और किसी पर दृष्टि नहीं डालनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी चारों ओर जो भी हो रहा है वो तो होना ही है, उस पर मुझे शायद दृष्टि नहीं डालनी है, लेकिन परमेश्वर मेरा गढ़ है और उसी पर मैं जाके वहां पे बस सकती हूँ। तो परमेश्वर को मैंने अपना जीवन को सौंपा और उसके बाद मेरे जीवन में काफी शांति थी। धन्यवाद। प्रभु मसीह की महिमा हो। मेरी गवाही है कि मैं तो शेयर करना चाहूँगा। अब ये 3 महीने लॉकडाउन के टाइम में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि जो मेरा बिजनेस था फोटोग्राफी का, किसी कारण की वजह से मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि जो हमारा जिनके यहाँ पे मैं रेंट पे था उन्होंने सडनली एकदम से मेरे को बोला कि जो भी तुम्हारा 2 महीने का रेंट है वो ला के दे दीजिए आप। तो मैंने उनको बोला अंकल अभी लॉकडाउन में मेरा भी पैसा रुके वाला कस्टमरों की तरफ, तो जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा मैं आपको 15 दिन के अंदर जो भी आपका रेंट है मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं आप, हमारे को ऐसा नहीं चलेगा, आप लॉकडाउन तो और कितना चलेगा उसका कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको हमारे यहाँ रहना है तो आप मंथली आपका रेंट पे करें तभी आप रह सकते हैं, नहीं तो आप खाली कीजिए। तो मैंने और मेरी मिसेज ने काफ़ी सोचा कि क्या करना है, क्योंकि करीबन वो जो हमारे ऑनर थे हमारे को नवंबर दिसंबर से इसी तरह से कोई ना कोई वजह से हमें परेशान कर रहे थे कि पहले भी नवंबर या दिसंबर में भी उन्होंने एकदम, मैं 13 साल से वहाँ पे हूँ, एकदम से मुझे डिपॉजिट मांग लिया उन्होंने, तब भी हम काफ़ी परेशान हो गए थे, हमने वो टाइम में भी डिपॉजिट दे दिया था उनको। और फिर सडनली अभी ये लॉकडाउन के टाइम में भी उन्होंने हमारे को इसी तरह से परेशान किया। तो हमने परमेश्वर से बोला कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतने टाइम से वहाँ पे रहते, हमने कभी वहाँ पे किराया भी लेट नहीं किया, हमारा टाइम टू टाइम हमारा किराया रहता है, पर ये हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे, इतना रूड व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रहे। क्योंकि हमारे आजू बाजू के भी जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे उनके जो शॉप ऑनर है उन्होंने उनका किराया 3-3 महीने का 2-2 महीने का माफ़ कर दिया है, किसी ने आधा ही रेंट लिया है, पर हमारा शॉप ऑनर है वो हमारे साथ इतना क्यों रूडली व्यवहार कर रहा है। फिर हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर तेरी योजना क्या है, हमारे को तेरी योजना के अंदर रहना है, और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अभी क्या करें, क्योंकि हम इसी बिजनेस से हमारी अभी तक जो भी है हमारी आर्थिक समस्या जो थी वो दूर हो रही थी। 13 साल से हमारा ये बिजनेस है और एक ही जगह पे हम इस बिजनेस को 13 साल से संभाल रहे हैं, और जितना हमारा कस्टमर के कांटेक्ट है सब है इसी एड्रेस पे है, और हम हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे परमेश्वर के, परमेश्वर तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। पर जब हमारे पास ऐसे संकट आते हैं, ऐसी कुछ अजीब या ऐसी कोई अनहोनी चीज़ हमारे जीवन में घटती है, हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं कि हम अपने प्रार्थना जीवन में हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कोई योजना पूरी करना चाहता है तो उसमें जीवन के जो भी दिनचर्या रहती है या बदलाव होता है, तो पर जब वो बदलाव हमारे जीवन में आता है हम उस बदलाव को घबराहट से या डर से लेने लगते हैं, और हम एक तरह से अल्पविश्वासी हो जाते हैं वो समय में, क्योंकि जब हम सब खुशहाली में रहते हैं, जब हमारा सब कुछ सही चलता है, हम प्रार्थनाएं करते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, अपने आप को बहुत प्रोत्साहित समझते, पर जैसे हमारे पे संकट आते तो हम इन सब चीज़ों को भूल जाते। ऐसा ही मेरे साथ भी होने लग गया। फिर मैंने कुछ भाइयों का साथ लिया, क्योंकि उस समय में मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैंने कुछ जो मेरे विश्वासु भाई है उनसे फ़ोन कॉल किए, उनसे बातचीत करी, उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि आप डरो मत, घबराओ मत, आप परमेश्वर की योजना जैसी आपके जीवन में चाहते हैं वैसे ही आपके जीवन में होगा। तो हमने एक डिसीजन लिया और हमने मेरी जो शॉप थी वो हमने छोड़ दी। करीबन 1 महीना हमने वो शॉप छोड़ दी और मेरे को कोई दूसरा शॉप भी नहीं मिल रहा था, और जब मुझे दूसरा शॉप मिला वो टाइम में भी ऐसा हो गया कि उसके कोई मिलने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि वो शॉप भी एक डॉक्टर ने ले चुके थे। तो वो शॉप ओनर ने बोला ये शॉप तो दोनों गए वाले, बोले कि कोई डॉक्टर आने वाला है, अगर वो डॉक्टर नहीं आया तो हम वो शॉप तुम्हारे को दे सकते हैं। तो हमारे को ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन खुलने से पहले हमने कहीं ना कहीं शॉप शिफ्ट करके
अपना सब कुछ रेडी करके रखना और जब लॉकडाउन खुलेगा तो अपना शॉप चालू कर देना वहाँ पे। पर हमारे को कुछ ऐसा रास्ता ही नहीं मिल रहा था क्या करें क्या नहीं। पर हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो ये शॉप हमारे को मिले, हम इसके लिए वेट करेंगे थोड़ा। और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने ऐसा ही किया है कि हम 10 या 11 तारीख तक वेट करेंगे शॉप के लिए। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो ये शॉप मिलेगी हमारे को। पर बीच में ऐसा हुआ कि 3 या 4 तारीख के टाइम में हमारे को ऐसा हुआ कि तुम एक बार कॉल करके देखते, सकता है सुबह होगा तो शॉप मिलेगी। हमने 3-4 तारीख को कॉल किया पर शॉप ओनर ने कोई कॉल उठाया नहीं हमारा। बोला कि हम 10 तारीख 12 तारीख का इंतजार करेंगे, नहीं हुआ तो फिर आगे का देखेंगे कोई नया शॉप। पर ऐसा हुआ कि 10 तारीख को ही वो शॉप ओनर का कॉल आ गया हमारे को और उन्होंने बोला कि नहीं आ रहे तो शॉप आप ले सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे को नया शॉप दिया, हम कुछ दिन तक काम वगैरह चालू कर दिया और इसके 3 दिन पहले उस शॉप की ओपनिंग भी। हाँ जी, मेरे को नया शॉप मिल गया है। परमेश्वर का आशीष मेरे पे है। हमने काफ़ी परमेश्वर को धन्यवाद दिया हमारे नए शॉप के लिए और परमेश्वर की दया से अभी मेरे को नया शॉप मिल गया है। Thank God for the encouraging words he spoke to us today. और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रोत्साहन के वचन आज उसने हमसे बोले हैं। Yeah. I'd like to read from James 1. याकूब पुस्तक उसके 1 अध्याय से कुछ पढ़ना चाहती हूँ। याकूब 1 2 to 4. याकूब उसका 1 अध्याय 2 से 4 वचन। Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. वहां लिखा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। God wants us to consider it all joy when we are encountered with various trials. और परमेश्वर चाहता है कि जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना करें तो उसको पूरे आनंद की बात हम समझे। How I am taking my trials, that depends on my growth in Christ. और किस प्रकार मैं इन मेरे जीवन की परीक्षाओं को ले रहा हूँ, इस पर निर्भर करता है कि मैं कितना परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ। Because His great love towards me, that's why He is allowing these trials in my life. और क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा महान प्रेम मेरे प्रति है, इस कारण से ही वो इन बड़ी परीक्षाओं को मेरे जीवन में अनुमति दे रहा है। Through this only I can be conformed to His image. और इसी वजह से, इसी तरह से मैं उसकी समानता, उसके स्वरूप में बन सकता हूँ। So if I don't take it joyfully, what God wants us to through these trials, through my life, that will not come through my life. और यदि अगर मैं इन परीक्षाओं को ठीक तरीके से आनंद के साथ नहीं लूंगी जो परमेश्वर चाहता है, जिस परीक्षाओं की उसने अनुमति दी है मेरे जीवन से। In verse 3 says, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. और जैसे 3 वचन में लिखा है कि जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो हमारा धीरज उससे उत्पन्न होता है। Through these trials, God is testing my faith. और परीक्षाओं के द्वारा जो परमेश्वर जो मेरे विश्वास को परखता है, when I am going through, I am believing that my God is on the throne. और जब मैं इसमें से गुजरती हूँ, तब मैं ये जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर उस सिंहासन के ऊपर है। He is controlling my life. और वही मेरे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। He is allowing these trials in my life. और वही मेरे जीवन में इन परीक्षाओं की होने की अनुमति देता है। When I am going through the trials, when I am believing that He is controlling, then my endurance will grow. और जब मैं उन हालातों से गुजरती हूँ, उन परीक्षाओं से ये जानकर कि परमेश्वर ने अनुमति दी है उनमें से गुजरने के लिए, तब उन हालातों में ही मेरे अंदर वो धीरज उत्पन्न होगा। So, I am His and He is mine. और मैं उसकी हूँ और वो मेरा है। And His banner over me is love.
और उसका जो झंडा मेरे ऊपर है वो प्रेम का झंडा है, He is covering with that banner of love. और उसने वो प्रेम के झंडे से मुझको पूरी तरह से घेरे रखा है। So when I am believing that through this testing of my faith, then my endurance will grow. और जब इन मेरे विश्वास के परखे जाने के समय में मैं इस बात पर विश्वास रखूंगी, तब मेरा जो धीरज है वो बढ़ेगा। So when it is grow, for in verse 4, so let it grow, my endurance. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. ये धीरज जब बढ़ता है तो उसको बढ़ने दे और उसका अपना पूरा काम करने दे, क्योंकि तब हम पूरे सिद्ध हो जाएंगे और हमें किसी बात की घटी ना रहेगी। So that is the actual God want me to have this my life, that to be perfect and complete and needing nothing. और परमेश्वर यही हमारे जीवन में वास्तविकता में चाहता है कि हम पूरे हो जाए, संपूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए, किसी बात की घटी ना रहे हमारे जीवन में। So this will happen only when I am taking my trials it with joy. ये तभी हो पाएगा जब मेरे सारी परीक्षाओं को मैं आनंद के साथ ले पाती हूँ। I also want to take all the trials which He is allowing me with His love. I want to take it with joy. और जो भी परीक्षाएं परमेश्वर उसके प्रेम के द्वारा मेरे जीवन में अनुमति दे रहा है, मैं उसको आनंद के साथ लेना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में हर परिस्थिति में परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा, और धन्यवाद देती हूँ कि इस वचन के द्वारा 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय का 6 तक मैं पढ़ना चाहती हूँ। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवक के समान लिखा, और जो साई से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसी ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हर समय संभाल के रखा, अब तक बचा कर रखा। कितनी परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ता। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी, मेरे पति जब बीमार थे तो परमेश्वर ने उन्हें किस तरह से चंगाई करके वहां से लेकर आए। तो परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है। हम नहीं देख सकते, लेकिन सच में परमेश्वर काम कर रहा है। इस पृथ्वी में कितने लोगों को चंगाई मिल रही है, और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी को भी परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, मेरे पति को भी सुरक्षित रखा, और मैं परमेश्वर की पत्री बनना चाहती हूँ कि जो हमारे हृदयों में लिखा गया है, क्योंकि लोग हमको पढ़ सके। ये नहीं कि मैं अपने सामर्थ्य से ही कर सकती हूँ, लेकिन वचन कहता है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है, क्योंकि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। हम इस योग्य नहीं कि अपनी किसी बात का विचार कर सके, लेकिन परमेश्वर ही है जो अपनी आत्मा के द्वारा हमें जिलाता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बचाया। तो हर दिन अपने आप को मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहती हूँ कि प्रभु मुझे परखे कि हमारे गुप्त विचार है, हम जो कल्पनाएं करते हैं, हमारी सोच क्या है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह उसे अपने आप सौंप दे, कि हमें वो परखे, हमें देखे, हमसे बातें करे, हमारे कानों को खोल कर रखे कि हम उसकी आवाज को सुन सके, स्वर्ग से उसकी आवाज को हम सुन सके। जैसे पहले पीढ़ियों ने पिता की आवाज सुना, और पवित्र शास्त्र के वचन नहीं समझते, लेकिन उस आवाज को सुन के पीछे चलते थे परमेश्वर के। तो उसी तरह आत्मा हम सबको अगुवाई करे कि हम उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे चल सके। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे नहीं कि मैं चाहती हूँ कि हर दिन अपने आप को मैं परखूं और प्रभु के हाथ में सौंपूं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, मेरे विचार क्या है, मेरी कल्पनाएं क्या है।
प्रभु पूरी तरह सब जानता है। हम मनुष्य की भीतर की बातें नहीं समझ सकते, लेकिन प्रभु सब कुछ समझता है। वो समझता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कल्पना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें अपने ऐसे हर दिन तैयार रखे, जैसे वो हमें लेने आएगा तो हम पूरी तरह तैयार हो, कि वेट नहीं करें कि कल आएगा। हम यीशु मसीह किसी वक्त भी आए तो हम रेडी होना चाहिए कि आज यीशु मसीह आए तो क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं उसके सामने पवित्र हूँ, क्या मैं, और मुझे उसके सामने पूरी तरह सौंप देना है कि प्रभु मेरे हर दिन के पाप को मुझे प्रकट करके दे, कि तेरे आने के दिन मैं वैसे तैयार रहूं, कि तू आज भी आए तो मैं तैयार रहूं, मुझे मृत्यु का डर ना हो। तो प्रभु सच में हमें वो शांति और विश्राम में ले चलेंगे कि कितना भी विपत्ति, कितना भी पूरी बीमारी पूरी पृथ्वी भर में, फिर भी हम प्रभु की ओर देखते हुए जीवित रहेंगे। चाहे मृत्यु भी आए फिर भी हम आत्मा में जी सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सच में हमें आत्मा में हमसे हर दिन बातें करे, हमारे कानों को खोले, हमारे पवित्रता को जो हम जीवन हर दिन बिताए वो हमें ग्रहण करे। जैसे रोमियो 12 में लिखा है कि प्रभु की आत्मिक सेवा ये है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हर दिन सौंपे। और मैं रोमियो का 12 आखिरी पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया श्रवण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपनी शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे को मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपनों को समझे। धन्यवाद सभी के लिए। जय मसीह। थैंक यू।